Hello my friends, welcome. So in this class we are going to see the IBPS SOIT mains mock test 3. We are going to see 60 questions which are very important from exam point of view. So I believe your basic uh, fundamental is clear, then only mock test is helpful for you. So I will show you the question and you need to give the answer here. So whatever the answer that you know, just let me know A, B, C, D, whatever the answer you want to give. But I request please give the answer so that if you are making mistake, then I can correct you. तो आई रिक्वेस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको आंसर देना है। आपका आंसर सही है या गलत है। अगर आपका आंसर सही है तो ठीक है, अगर आपका आंसर गलत है तो मैं उस चीज को बताऊंगा क्यों आपका आंसर है गलत, तो उससे हो सकता है कि एग्जाम में आप मिस्टेक ना करो। अपना मेन मोटिव यही है कि यार स्टूडेंट से एग्जाम में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो एसिड प्रॉपर्टी अगेन आई हैव टोल्ड सो मेनी टाइम, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन डेटाबेस। वन क्वेश्चन ऑलवेज आस्क इफ इन द सिलेबस डेटाबेस इज देयर। किसी का आंसर आया है सी, ओनली अंकित सी, अदर स्टूडेंट प्लीज गिव आंसर। So acid atomicity, consistency, isolation, and durability. So answer will be the C, isolation. तो आप लोगों का C आया सबका? Okay, nice. So I believe you all agree with me. Okay. So in any question, if you need explanation, please let me know. किसी भी क्वेश्चन में explanation की requirement है, please मुझे बता देना. I will give my best to explain you. Okay. Next question. This question asked in the examination of UGC NET 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। जो आपका रहता है DNS, you need to remember it is the port number 53. And what is the basic do? It will check IP, sorry, name to IP. तो ये क्या करेगा, नेम से IP बना के देगा। The answer will be the A option here. आपका A आंसर आ रहा है। ओके, नाइस। अंकित का आंसर A आ रहा है, सो रेस्टोरेंट का आंसर नहीं है, सो आई विल एक्सप्लेन ओवर हियर। ये होता क्या है कि वेन एवर यू हिट एनी वेबसाइट, आपने वेब ब्राउजर ओपन किया, इन योर वेब ब्राउजर whenever you hit any URL, so what it will do, first it will check in the local cache. So first it will check its local cache. तो जो आपका local cache है वहां पे it is going to check whether you already open the website or not. If you have already opened the website, so it is going to check the local cache. तो सबसे पहले what it will do, it will check the local cache. तो ऑप्शन आपका जो सी है उसमें आपका लोकल दिख रहा है और ऑप्शन बी में भी आपका लोकल दिख रहा है। इन रेस्ट देर इज नो लोकल, सो इट मीन्स आई कैन से दैट आपका आंसर बी या सी से स्टार्ट हो सकता है। तो ए से आपका आंसर स्टार्ट नहीं हो रहा है, सो वी कैन डू द ऑप्शन एलिमिनेशन ऑल्सो। तो फर्स्ट इट इज गोइंग टू चेक द लोकल। नाउ लोकल डीएनएस सर्वर चेक और लोकल क्वेरी DNS server. First, it will check for the local query. So first, it will check for the local query. After local, it will check for the local DNS server. After that, it will check for the so BC से आपका start होगा. So you can see BC से आपका आंसर start हो रहा है. So option A will be the right option for here. अब sometime the examiner asks also the domain. तो कोई भी आपकी वेबसाइट है जैसे है www
google.com। तो अब इसमें क्या है, सबसे पहले लगता है डॉट। इस डॉट को कहते हैं रूट लेवल, सो दिस डॉट इज नोन एज रूट लेवल। एंड आफ्टर दैट वी आर हैविंग अनदर डॉट, सो जैसे एक डॉट है उसके बाद हमने बाद अलग लगता है डॉट। सो वी कैन से बाय डिफॉल्ट वन डॉट इज देयर, बट it is invisible, but by default there is a dot in any web browser. Whenever you open a web browser, by default there is a one dot. It is not visible to us, but it is there. So it is represented by root level. After that we are having some level one. So in that we can have country level domain also, and we can also have some commercial level domain also. Then we are having the Google. So this is level three. So sometimes the examiner also asks question from here. Okay. So moving ahead, next question. This is the question from big data. Which schema is commonly used in data warehouse designed for simplifying complex query? Maybe you have heard this name, इसका आपने कभी नाम सुना होगा. In that we are having facts and we are having dimension. के अंदर आता है स्टार स्कीमा के अंदर बी। तो आपका बी आंसर आ रहा है, बी। इसका बी आंसर है, वेरी गुड। फर्स्ट आंसर गिवन बाय आशीष, गुड आशीष। फैक्ट कंसलेशन, ओके नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन कहाँ से आया है? नेटवर्क है, नेटवर्क में ओएसआई लेयर है, ओएसआई में लेयर वन, लेयर वन का ये क्वेश्चन है। सी सी सी, ओके, सब स्मार्ट हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is a question from SQL from database. बी बी बी, ठीक है। इसमें मुझे लग रहा है कि आपको कुछ एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है। In any question, if you need explanation, please let me know. I will explain. Otherwise, I will assume कि आपको चीजें आती है।
Yes, so these are the private IP address range in class A, class B, class C. Maybe I have made some mistake, अभी इतना याद नहीं है, बट ये आपकी रेंज रहती है। तो इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी इज बिलोंग टू ए प्राइवेट आईपी। तो क्लास ए, ये क्लास ए का है, दिस इज क्लास ए, बट इट डोंट बिलोंग इन द आईपी। दिस इज क्लास बी, it belong, it belong. This is class C, but it don't belong in the private IP. And in D, we don't have any private IP. So answer will be the B. Okay. सबका बी आंसर आ रहा है ना? बी बी बी, क्या बात है, सब स्मार्ट लड़के हो यहाँ पे। Yes. ये याद कर लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको आता होगा। तो मैप रिड्यूस है, थोड़ा सा बिग डेटा देख लेना। ठीक है, तो देखो, होता क्या है आपका। देखो, सबसे पहले आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड बिग डेटा होता क्या है। ठीक है, उसमें क्या होता है, वी आर हैविंग सम सॉफ्टवेयर्स, वी कैन से आपका हडूप है आपका। ठीक है, उसमें होता क्या है, वी आर हैविंग मास्टर एंड स्लेव कंसेप्ट, वी आर हैविंग मास्टर एंड स्लेव कंसेप्ट, slave concept. So when we are dealing with the big large data, so it is not feasible that हम कि वहाँ पे आपका जो जैसे आपका Oracle DB है, MySQL DB है, so वो यहाँ पे आपके वर्क नहीं करते। So we have to go for some other approach or other approach, you can say सॉफ्टवेयर। तो जिसमें आपका सबसे ज्यादा फेमस आजकल हडूप है। तो ठीक है, सो इन दैट वी आर हैविंग द कंसेप्ट ऑफ मास्टर एंड स्लेव। तो इसको ऐसे आप देखो कि
आप यू आर ए मैनेजर, ठीक है। अब आपके पास क्या बहुत सारा काम है, बट यू आर हैविंग स्लेव्स, तो आप क्या करो, यू विल असाइन द टास्क, you will the assign the task. So now when you have assigned the task, now you need to keep the tracker. So you are going to assign the task and task plus tracker, task plus tracker. So just try to understand, when you are having a big large task, you have divided into small parts, and you have say this is the slave 1 task, slave 2 task, slave 3 task, slave 4 and slave 5. So we can say you are having a large map, and you have reduced it, and then this concept, you can say little bit you can relate, but to be very honest कि यहाँ पे मैं बिग डेटा बताऊंगा, सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो आई हैव मेड ऑलरेडी अ वीडियो ऑफ द बिग डेटा, जहाँ पे जो बेसिक बेसिक कंसेप्ट है वो बता रखा है, बट बिग डेटा एक अलग चीज है, इसको अगर आप देखने जाओगे तो मेरे हिसाब से 3 to 6 मंथ लगेंगे जस्ट टू नो अबाउट द बिग डेटा। और मेरे को भी इतना अच्छे से बिग डेटा नहीं आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे आई डोंट वांट टू लाई कि मेरे को अच्छे से आता नहीं, मुझे भी बस बेसिक बेसिक फंडामेंटल बिग डेटा का पता है, ठीक है। तो आई एम मूविंग अहेड, सो आई बिलीव लिटिल बिट यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू ट्राई टू एक्सप्लेन, ओके। सो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। ओके श्रद्धा, which type of cloud service? Now this is the question for cloud computing, तो वो भी क्लाउड भी एक अलग चीज है, उसको भी आपको देखने में टाइम लगेगा, बट जस्ट टू नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ क्लाउड, आई गेस 1 मंथ इज इनफ। एक महीने में आपका बेसिक्स ऑफ क्लाउड आराम से अच्छे से हो जाएगा। सम स्टूडेंट कैन डू इन 1 वीक और 2 वीक, इट डिपेंड हाउ many आवर्स यू स्टडी, कितने आवर्स आप स्टडी करते, बट मेरे हिसाब से अगर आप 40 आवर्स दोगे ना टू द क्लाउड, 40 आवर्स, तो 40 आवर्स में अच्छा खासा आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्लाउड की। So when we are dealing with the unstructured data, so first you need to understand what is the structured data and what is the unstructured data. So if you know about what is unstructured data, so in that we may have image, we may have video, we may have some GIF, or we may have file. In that file, we may have any doc, we may have any PDF. So anything we can have. So this unstructured data is going to stored as a object storage. तो सी इज द राइट आंसर। एट्थ का सी किसका आया है? एट्थ का सी, क्या बात है, सब स्मार्ट हो यहाँ पे। द फर्स्ट आंसर गिवन बाय चेरी चेरी, वेरी गुड माय फ्रेंड। एंड लास्ट इज श्रद्धा, नाइस। नाइन्थ क्वेश्चन। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कंपाइलर डिजाइन। ये क्वेश्चन कहाँ से है? ये आपका क्वेश्चन आया कंपाइलर डिजाइन से। कंपाइलर, दो स्टूडेंट हु आर फ्रॉम ईसीई बैकग्राउंड, जो ईसी हैं वो आराम से देंगे, बट एज यू आर फ्रॉम द बीटेक और एमटेक और एमसीए और एमएससी, सो इन योर फर्स्ट ईयर you have studied basics of compiler design. See, sometime the examiner may ask or may not ask, it depend on the examiner. तो किसका रहता है काम? So this is the linker. तो लिंकर का ये आपका काम रहता है। B is the right answer for this question. Object plus dependency, nice, nice my friend।
तो सबका बी आ रहा है, बी। वेरी गुड शोविक, एंड वेरी गुड शुभम। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम SDLC, और वी कैन से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे क्या चेंजेस आपके फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से रीड करना है। फ्रीक्वेंट चेंजेस में कौन सा मॉडल आपके लिए बेस्ट रहेगा? 10। क्वेश्चन 10 में किसी ने तो गलती की होगी ना? किसी ने गलती नहीं की। ये एक तो फंसा, अंकित फंस गया। ओके, अंकित फंस गया। सी, सम टाइम वी कैन लुक कि ठीक है, यहाँ पे सम टाइम विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज सुटेबल फॉर द प्रोजेक्ट फॉर द फ्रीक्वेंट अपडेट। हमने देखा फ्रीक्वेंट है, तो हमें ये लग गया कि सबसे बढ़िया आपके स्पाइरल या एजाइल आपका हो सकता है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा ट्रिकी है। लीस्ट लिखा है, लीस्ट मतलब वर्स्ट बताना आपको, भाई वर्स्ट कौन सा है इसके अंदर, वर्स्ट कौन सा रहेगा? वाटरफॉल मॉडल। So sometime the examiner play with the questions also. So that's why you need to read the question carefully. Okay? एक स्टूडेंट यहाँ पे फंस गया। मोस्ट सुटेबल कौन सा रहेगा? सी, मोस्ट सुटेबल मेरे हिसाब से आपका एजाइल रहेगा। स्पाइरल, स्पाइरल भी होगा, बट सी अगर क्वेश्चन में सिर्फ मोस्ट सुटेबल लिखा है तो आपको ये टिक करना है। अगर वहां पे रिस्क जैसा कुछ वर्ड लिख दिया है तो आपको स्पाइरल के साथ जाना पड़ेगा। अब जैसे जो एजाइल है, उसके अंदर भी आपकी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे आपका स्प्रिंट्स वगैरह रहता है, आपका एक्सपी रहता है जिसमें हम कहते हैं एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। तो इसमें भी आपके अलग अलग methods रहते हैं। This is a model. In that model, we are having the different methods. So it depends which method you are following. But basically, all go with the sprint method. So in that, we are having a Scrum. आपकी Scrum होगी, Scrum Master होगा. Then we are having the story points. In that story points, we are going to have backlog also. We are having retro also. So there are so many things which happen, and all MNCs or all we can say big कंपनीज जैसा TCS है, विप्रो है, गूगल है, फेसबुक है, एवरीवन इज फॉलोइंग द एजाइल। फिर उसमें क्या होता है, डेली स्टैंड अप कॉल होता है, डेली स्टैंड अप कॉल। सो व्हाट यू हैव डन एंड व्हाट यू डू। क्वेश्चन 11। कैनबैन इज अ पार्ट ऑफ स्प्रिंट। कैनबैन, नहीं यार, इस पे मैंने वर्क नहीं किया, बट कैनबैन मैंने स्प्रिंट में नहीं देखा है। एट माई टाइम नहीं था, अलग होता है आपका। स्प्रिंट इज डिफरेंट। कैनबैन का मतलब याद नहीं आ रहा, मे भी हो सकता है। 11 क्वेश्चन। वेरिएबल साइज सेगमेंट में बात हो रहा है यहाँ। इसमें आप क्या रहेगा, सेगमेंटेशन। सो वी आर गोइंग टू डिवाइड। सेगमेंटेशन में क्या फिक्स रहेगा? तो इन द सेगमेंट व्हेन द वेरी इन साइज, सो व्हेन देयर इज अ वेरिएशन इन साइज, व्हेन वी आर हैविंग द वेरिएशन इन साइज। यहाँ पे सी आंसर रहने वाला। कैन बैन यार अंकित मेरे हिसाब से अलग चीज है, स्प्रिंट में नहीं रहता है। पेजिंग, पेजिंग में भी क्या रहता है आपका, फिक्स ही रहता है साइज। एक सेकंड, ये कैन बैन,
नहीं है इसमें, देखो आपका जो स्क्रम है, स्क्रम के अंदर आपका स्प्रिंट आ रहा है, बट जो कैनबैन है उसमें स्प्रिंट नहीं आ रहा है। तो सी, एजाइल जो आपका है मैथोलॉजी, उसके अंदर ही आपका स्क्रम भी है, कैनबैन भी है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग भी है, बट कैनबैन और स्क्रम दोनों अलग अलग चीज है ना, तो मिक्स मत करना। स्मॉल पॉट इज, हाँ ठीक है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन पेजिंग में होता है। अब यहाँ पे एक कोडिंग का क्वेश्चन है, कोड स्निपेट देर, तो सी का कोड स्निपेट है, इट इज आस्किंग सम आउटपुट। इजी क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन है, इजी है। इसका आंसर मेरे हिसाब से सबका सही आएगा, इसमें कुछ नहीं है। डिफरेंस बिटवीन सेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन, यस इन द लास्ट वी विल ओके, लास्ट में देख लेंगे ना, कोई भी आपका क्वेश्चन होगा इन द लास्ट वी विल डू। ये क्वेश्चन ठीक है, देखो ऊपर वाला इजी था, यहाँ पे ठीक है क्वेश्चन। ठीक है क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये आंसर आ रहा है क्या आपका? क्या बात है, सब स्मार्ट हो यहाँ पे। फर्स्ट आंसर गिवन बाय चेरी चेरी, एंड लास्ट इज श्रद्धा नानी का, नाइस। क्या आंसर आ रहा है? डिस्ट्रक्टर सी, सी आ रहा, व्हाट इज योर आंसर? सी। फर्स्ट इज आशीष, वेरी गुड, सर्विक्स। डिस्ट्रक्टर में ऐसा आपका सिंबल आता है। Sometime we can play with the option elimination also. Java.util is the package which will give you all the information. Okay? इसमें आपका जैसे एरे है, एरे लिस्ट है, हो सकता है आपका हैश मैप हो, other things we can have, so it is in the java.util package. Okay, और सबका भी है, नाइस। 16 ओएस का क्वेश्चन है।
सेमाफोर किसके यूज में आता है? मेनली आता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में आपका यूज आता है। तो ए विल बी द मोर एक्यूरेट आंसर हियर। 16 का ए। आपका ए आ रहा है ना? सी। अंकित का सी आ रहा है। ये ए आंसर आना चाहिए इसका ना। जो भी कह रहा है 13 क्वेश्चन, 13 कौन सा है? ए तो है, ए है। सी। ये जो वेरिएबल है, इसको, ये जो पॉइंटर इसके एड्रेस को चेंज कर देगा। देखो मान लो मैंने एक्स में लिखा 5, और मैंने मान लो एक वेरिएबल ये बना दिया P7। इसमें मैंने एड्रेस ऑफ एक्स लिख दिया। अब कुछ भी चेंज करूंगा, इफ एनीथिंग, इफ आई चेंज इन दिस एड्रेस, ये जो एड्रेस है, मान लो आपका एड्रेस है 2434598। इस एड्रेस में मान लो वैल्यू रखिए 5। अब यहाँ इसके थ्रू मैंने कुछ भी चेंज किया बाय यूजिंग दिस पॉइंटर, एनी चेंज इन द एड्रेस, मैंने यहाँ 50 कर दिया, सो दिस 50 ऑटोमेटिकली गोइंग टू कन्वर्ट ओवर हियर। जब आप x को देखोगे आपको 50 लगेगा, बट यहाँ पे आप देखोगे कहीं पे भी मैंने x और y में चेंज नहीं किया है, बट आई एम प्लेइंग विद द पॉइंटर्स, दैट्स व्हाई दिस वैल्यू चेंज्ड। ये आंसर होगा तो इसका। ये हो गया था 17th क्वेश्चन। अब देखो, अब आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, because this type of question asked in the examination of GATE, asked in the examination of UGC NET. Why? To kill your time. To kill your time. अब क्या होता था, एक क्वेश्चन है, चार ऑप्शन, अब क्या है? एक दो सही है, ये सही है, ये सही। सो दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज अ न्यू ट्रेंड। ठीक है, तो दिस इज न्यू ट्रेंडिंग क्वेश्चन, ऐसे एग्जाम में आते हैं। 17 का ए है ना आपका? ए आंसर होगा। द फर्स्ट आंसर, राइट आंसर गिवन बाय श्रद्धा। Nice and Ashish, and the right is Raki Kela. Nice, my friend. देखो एरे में क्या है, सेम आपका रहेगा डेटा, सो ऐसा नहीं है कि इसके साथ आपने कुछ और स्टोर कर दिया। सेम डेटा यूनिट टू स्टोर। क्वेश्चन 18। आंसर आ रहा है क्या आपका? ए। ए कैसे आ रहा है? ये आ रहा है मेरा, तो आपका ये कैसे आ रहा है?
ये नहीं है, डी आंसर आ रहा है यार। इसने पूछा है टोटल बिट। टोटल बिट में क्या है आपका, जो पेज है उसकी बिट कितनी है, प्लस जो आपका लॉजिकल एड्रेस है, और वी कैन से ऑफसेट बिट, इसको हम बोल सकते हैं ऑफसेट बिट। ये आपको गिवन है, ये है आपकी 13, पेज कितना आपका 10 है, तो ये आपका 23 हो जाएगा। क्वेश्चन 18, ऑफसेट। यस शुभम, नाइस। ठीक है, सो मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following best describe the OLAP system? This is a question of big data, we can say. So first of all, OLF full form online analytic processing. So A है analytics. So analytics पे आपका where it is going to use for the big data dump. जो आपका data dump रहेगा, so where we are going to have. So this will be a very large dump. So here we are going to apply some analytics. Uh, Complex queries are going to be run over here. So B will be the right answer for. आप सबका बी आ रहा है ना? नहीं, शुभम का बी है, एंड लक्ष्मीर और इसका श्रद्धा का भी बी है। नाइस। ओएलएप में स्लाइसिंग एंड डाइसिंग कंफ्यूज हो जाता है। यार ये बिग डेटा क्या, इतना मेरे को भी आता नहीं, बट आते हैं क्वेश्चन आपके, स्लाइसिंग डाइसिंग है, इनके क्वेश्चंस आते हैं। इट डिपेंड ऑन द एग्जामिनर मूड कि वो किससे क्वेश्चन पूछना चाहता है, वेरी बेसिक और लिटिल बिट और इन डेप्थ। अगर इन डेप्थ क्वेश्चन आ गया तो यू नीड टू स्किप, अदरवाइज अगर इफ यू हैव स्टडीड बिग डेटा, अगर आपने बेसिक बिग डेटा देखे, इफ यू स्टडीड बिग डेटा फॉर 30 to 40 आवर्स, अगर देखा है तो इट मीन्स बिग डेटा बहुत अच्छा है। अगर आपने इसको 7 to 8 आवर्स भी देखा है कि यार बिग डेटा क्या होता है, तो इससे क्या 7 to 8 आवर्स में बेसिक अंडरस्टैंडिंग यू आर गोइंग टू गेन अबाउट द बिग डेटा। तो एक क्वेश्चन है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का। तो दिख रहा होगा ना आंसर आपको, थोड़ा सा इसको, तो यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो आप। ये पूछ के रहे, एवरेज टर्न अराउंड टाइम पूछ रहा है, सिस्टम में इसने कितना देर बिताया। सो वी नीड टू फाइंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो एवरेज टर्न अराउंड किसी को, आपका कंप्लीशन टाइम व्हेन इट इज गोइंग टू बी कंप्लीट, माइनस अराइवल टाइम P1 का निकालेंगे तो P1 when it complete at 8 second, at it which second he has arrived at 0 second, 8 minus 0. Okay. Now P2 complete at 14 second and it arrived at 0.2
0.06 सेकेंड, 0.6 है, हो जाएगा 13.4। P3, P3 complete at 18 सेकेंड माइनस P3 कम एट 3.8 सेकेंड, 8.2, तो बचेगा 9। अब हुआ था 18 पे खत्म हुआ था ना, 18, 4, 14.2। P4, P4 है 20, इट कम एट माइनस 4.4, 3, 15.6। इनको ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड कर लो। तो 4, 8, 10, 6, 6, 10, 20, 4 से डिवाइड किया, राउंड राउंड फिगर आ जाएगा, ठीक है। 2, तो 5, 4 से इसको करो फिर से डिवाइड, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 पॉइंट कुछ आंसर आएगा इसका, तो मे बी 12.8 इसका आंसर हो सकता है, बी। आपका बी आंसर आ रहा है क्या? बी, नाइस। बी, the first answer given by Cherry and Shovik, very good. So if you required explanation in this question, I hope it is clear. जिनका आंसर नहीं आया, you want explanation or it is clear to you? अभी देखो इसमें कुछ नहीं करना है, इनको ऐड कर लेना, इनको ऐड करना है, इनको ऐड करना है, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर एडिंग, डिवाइड बाय 4, एवरेज आ जाएगा। Anyone need explanation or it is clear? Those student who don't give the answer, जिन्होंने आंसर नहीं दिया, जैसे राहिल, केला, किरण, पवन, ओके। See, if you want explanation, I will explain, no problem. बट एग्जाम में मिस मत कर ऐसा क्वेश्चन। देखो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, so try to attempt because it will definitely 100% it will give you 1 mark. Maybe this question can take your 60 second, maybe this question can take 70 second, maybe this question can take your half minute, but this will give you 1 marks 100%, ठीक है। तो इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी है, इंट के अंदर ही हम कम करते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। नाइस। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। सी आंसर आ रहा है इसका 5। आपका क्या आ रहा है? क्या आ रहा है ना? नाइस, गुड। फर्स्ट आंसर गिवन बाय चेरी एंड शोविक, नाइस। कैन यू एक्सप्लेन? यस, श्योर। सी, वी आर हैविंग ए क्यू, इसमें होता है क्या, इट इज दैट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, लाइक दिस ऑपरेशन। सो क्यू follow first come first serve. So here we need to dq, we need to dq. So when we are going to dq, it is going to remove element from the front, it will remove the element from the front.
फ्रंट से क्या करेगा, एलिमेंट को रिमूव करेगा. So first it will remove this element, then 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 it will remove this element. So we need to remove the largest. So if we look at the option, the largest option is 96. So to remove it, 1, 4, 5. So 5 operations are required. Okay. Moving ahead, question 26. ये क्वेश्चन आपके सब अच्छे हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन ठीक है, कुछ क्वेश्चन इजी हैं और कुछ अच्छे भी हैं. बी बी क्यों आ रहा है? लास्ट पेज होता है दोस्त. और जितने भी आपके पेज हैं वो फिट हो जाएंगे, बट फॉर द लास्ट पेज इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. तो लास्ट पेज विल बी द आंसर. The internal fragmentation, external fragmentations are there. The in what happen in external fragmentation. तो एक स्टूडेंट ने पूछा था इंटरनल एक्सटर्नल में. एक्सटर्नल में क्या होगा दोस्त? You are having the space but not in the continuous, not in the continuous में. जैसे कि मान लो कि आपके पास में ये स्पेस है, यहाँ पे आपका कुछ स्पेस बाकी है. मान लो कि 1 MB यहाँ पे बाकी है, मान लो कि 1 MB यहाँ पे बाकी है, और मान लो कि 2 MB यहाँ बाकी है, और यहाँ पे कुछ आपके यूज हो रहा है. दिस इज इन यूज. जैसे लेट सपोज ये यूज है, ये यूज है, ये यूज है. लेट सपोज अ प्रोसेस कम, एक प्रोसेस आया P7. इसने बोला आई नीड 4 MB ऑफ रैम, आई नीड 4 MB ऑफ रैम. इसने देखा यस आई एम हैविंग 4 MB ऑफ रैम बट नॉट इन द कंटिन्यूस, नॉट इन द कंटिन्यूस. So this is called external fragmentation. When you have the RAM, when you have the RAM, but these are not in a continuous. Because of that, it creates an external fragmentation. Now, what happened in internal fragmentation? You are having a fixed size is there. And एक process size ने बोला कि I just need only 1.8 MB, but you have allocated this way. So this 0.2 MB is wastage. This is wastage. So it is the most likely wastage occur in the last page. Question 23C. Please explain the concept. Okay. एक सेकंड देना. हैविंग अ रैम, एक रैम है आपके पास में. मान लो आपकी रैम है 10 MB की रैम है आपके पास, 10 MB की रैम. तो in internal fragmentation, you are going to
डिवाइड द रैम इन फिक्स साइज, क्या होगा फिक्स साइज। आपने बोला कि लेट्स डिवाइड दिस इनटू टू ऑफ 2 MB पार्ट, all parties of 2 MB, 2 MB, 2 MB, 2 MB, 2 MB. So total you are having 10 MB space. Okay. Now let's suppose a process come. एक process आया P1. इसने बोला I need 3 MB of RAM or I need 4 MB of RAM. इसने बोला I need 4 MB of RAM. So you have allocated this to P1. This to P1. This two block is allocated to P1. Let's suppose another process come P2. इसने बोला I need 1 MB ऑफ रैम, आई नीड 1 MB ऑफ रैम इस P2। आपने कहा कि यार P2 है तो ये ले लें, सो 1 MB ऑफ रैम इज अलोकेटेड टू P2। तो दिस slot इज एम्प्टी, दिस slot इज एम्प्टी, तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो आपकी जितनी मांग है, जैसे कि एग्जांपल देखो, एग्जाम में इतना याद नहीं रहता, एग्जाम में कैसे याद करें, एग्जाम में कैसे याद करें, ठीक है। इसके लिए आप ये बात करो कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, यू वेंट टू सम रेस्टोरेंट और यू वेंट टू सम होटल, वहां पे लगा हुआ था बूफे, ठीक है। उसने बोला कि जो बूफे की प्राइस है भैया वो 800 रुपए है। उन्होंने एक वो लगा रहा बूफे लगा रखा है, 800 रुपए प्राइस है। अब आपको इतनी भूख ही नहीं है, यूजुअली वुमेन, मतलब यूजुअली जो वुमेन है वो वहां जाएगी, वो मुश्किल से 100 रुपए का खाना खाएगी, या हो सकता है कि 200 रुपए का खाना खा ले। अब इसके जो 600 रुपीज है वेस्ट हो गए, इसके जो 600 रुपीज है वो वेस्ट हो गए। सो दिस इज कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इतना याद करो, मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा आपको दे रहा है, तो जो वेस्टेज हो जाएगा, फूड वेस्टेज हो जाएगा, तो ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। एक्सटर्नल में क्या होता है, मान लो कि यहाँ पे जैसे बताया था 1 MB स्पेस है, और यहाँ पे मान लो कि आपके पास में 3 MB स्पेस है, ये फ्री स्पेस है और ये यूज में हो रहा है। अब एक प्रोसेस आया P6, इसने बोला आई नीड 4 MB ऑफ रैम। आपने देखा यस आई एम हैविंग द 4 MB ऑफ रैम बट दे आर नॉट इन अ कंटिन्यूअस, so because of that I am unable to allocate 4 MB of RAM because they are not in continuous, so this is called external fragmentation। इसको बोला external fragmentation, ठीक है। it is clear to you? In paging no external, which page is external fragmentation? देखो यूजुअली होता है मोस्ट, देखो हर एनी पेज कैन हैपन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, किसी भी पेज पे आपका हो सकता है, बट जो सबसे ज्यादा होता है मोस्ट लाइकली होगा क्वेश्चन पे। देखो एनी पेज कैन, किसी भी पेज पे हो सकता है एनी पेज, बट मोस्ट लाइकली क्वेश्चन में लिखा है मोस्ट लाइकली आपका हमेशा लास्ट में हो, मोस्ट लाइकली इट इज गोइंग टू हैपन इन द लास्ट। लक्ष्मीर हल्का बहुत कुछ क्लियर हुआ, लिटिल बिट इज क्लियर टू यू लक्ष्मीर? इफ यस देन वी विल मूव अहेड। इजी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर दे दो, इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन, मोस्ट इजी क्वेश्चन। बी 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 डी डी, देखो उसमें क्या होता है, सीपीयू होता है, सीपीयू के पास क्या होता है, रजिस्टर होता है। यहाँ क्या होता है आपका, कैशे के बाद क्या होता है, रैम के बाद क्या होता है, हार्ड ड्राइव, और इसी से हम क्या बना लेते हैं, आपका वर्चुअल रैम। तो कैशे, रैम, वर्चुअल, और इसी को हम क्या देते हैं, मेन मेमोरी, इसी को मेन मेमोरी कह देते हैं। तो रैम इज इक्वल टू मेन मेमोरी, रैम को ही हम मेन मेमोरी कह देते हैं। कैशे, बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। ओके, इसने बी दिया है, आई गेस समवन हैज गिवन द डी। ओके,
Rakhil, I guess it is clear to you. Okay. क्वेश्चन 25। ये क्वेश्चन बहुत आता है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क मोस्ट ऑफ द टाइम। दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो इसमें क्या होता है, काउंटिंग सेमाफोर। इसमें क्या है, यू हैव अ वेरिएबल, एक आपको वेरिएबल याद करना है, एक्स मान लो। इनिशियल वैल्यू कुछ देगा, इट इज गोइंग टू गिव द इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या है? तो एक्स इज द इनिशियल वेट। अब इसमें क्या होता है, दो ऑपरेशन होते हैं, एक आपका वेट होता है, एक होता है सिग्नल होता है। ठीक है, एक वेट होता है, एक आपका सिग्नल होता है। नाउ, अब जो वेट है वो सबको हेट आता है, एवरीवन हेट वेटिंग। एवरीवन हेट वेटिंग, एवरीवन हेट वेटिंग, यू आल्सो हेट वेटिंग। आपके कोई दोस्त है, उसने आपको बोला कि यार मैं आई विल कम इन हाफ एन आवर एंड यू आर जस्ट वेटिंग फ्रॉम लास्ट 1 आवर, तो एवरीवन हेट वेटिंग। इसमें याद कर लेना, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज अ सिग्नल। सो जैसा आपने देखा होता है, ग्रीन होता है सिग्नल। सो मे बी इन द रोड, आप रोड पे जा रहे हो, तो वहां पे क्या होता है, ग्रीन सिग्नल। इसको ऐसे याद करना। सी एग्जाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, बिकॉज एग्जाम में क्या होता है, there are lots of concept, so it is impossible for us to remember each and everyone, so we have to use some trick. So it is signal, so everyone likes signal, so everyone want a green signal, so it means positive. अब इसने वैल्यू दी है 12p, तो यहाँ पे लिख लो 12p। और इसने सिग्नल कितने दिए, 7p। तो जस्ट रिमूव एवरीथिंग, 8 माइनस 12 प्लस 7 का आंसर निकाल लो। 8 माइनस 12 प्लस 7 कितना आएगा, 4, 3। इट इज नाउ क्लियर टू यू। अब एग्जाम में आई गेस यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगॉट। सी कंसेप्ट बहुत ज्यादा है, बट वी हैव टू यूज सम ट्रिक। एज ए इंडियन वी हैव टू यूज सम ट्रिक, क्योंकि याद याद करना मुश्किल होता है। एग्जाम में हो सकता है कि आप भूल जाओ कि ऑपरेशन पे क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन द ऑपरेशन ऑफ इट, वेदर इट्स विल बी ऐड और वेदर इट विल बी नेगेटिव, एडिशन होगा या नेगेटिव होगा। So somewhat we make some mistake and because of that mistake we got incorrect answers. तो मैंने एक ट्रिक बता दी है, वेट, एवरीवन हेट वेटिंग, सो वेट मतलब नेगेटिव। क्वेश्चन 26। एंड और टर्मिनेटेड। तो यू आर हैविंग 5 मेथड्स, तो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। सी इज द राइट आंसर। सबका सी आया ना? तो भी कर दिया है, ओके, नो प्रॉब्लम बड़ी। नो नीड टू से सॉरी, यू मेड मिस्टेक, नो प्रॉब्लम। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव यू द कंसेप्ट क्लियरिंग। ठीक है, यहाँ आप जितना मर्जी मतलब कुछ करो, मिस्टेक करो, ठीक है, एग्जाम में नहीं करने गलत। तो ये याद कर लो ना, इसको याद कर लो दोस्त, ठीक है। नीड टू रिमेम्बर दिस, मूविंग अहेड। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डीएसए।
देखो स्टैक तो शेड नहीं होता, स्टैक आपका शेड नहीं होता। ए वाला जो ऑप्शन है उसको हटा दो। अगर नॉट शेड, सो ए नहीं होगा, तो ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। बाकी रजिस्टर्ड, मैसेजिंग क्यू, ये आपकी शेड होती है, ये शेड होती है, ये शेड है। मैसेजिंग क्यू शेड, तो डी हो सकता है। ए या सी के अंदर नहीं, शेड है। नॉट शेड पूछा ना, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। रजिस्टर इसका पता नहीं, देखो यार, ये देखो, मैं जितना मुझे याद आ रहा है, ये जो चीज है ये नॉट शेड है। दिस इज नॉट शेड एंड दिस इज शेड। रजिस्टर्ड, रजिस्टर एड्रेस स्पेस, एड्रेस स्पेस भी शायद शेड होगा ना, एड्रेस स्पेस। इन दोनों को देख लेना है। आई एम अनेबल टू रिकॉल। रजिस्टर शेयर होता है, इसका आप लोग क्या कह रहे हो? आई थिंक ओनली स्टैक इज नॉट शेड। स्टैक एंड रजिस्टर, ठीक है, स्टैक इसका आप देख लेना। तो यू नीड टू डू दिस होमवर्क फॉर यू। होमवर्क कर लेना। याद नहीं आ रहा यार, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन आया है। दिस क्वेश्चन आस्क इन अ लॉट ऑफ एग्जाम। मे बी देर इज एग्जाम, गेट के क्वेश्चन में आया हुआ है ये। यूजीसी नेट में आया हुआ है। इसरो का जो पेपर है उसमें भी आया हुआ है ये। आईबीपीएस का जो एग्जाम है उसमें भी आया हुआ है। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी है समटाइम, एंड समटाइम देर इज ए इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ऑल ए कह रहे हो, ठीक है, नाइस। मूविंग अहेड। व्हाट इज द क्लॉक पीरियड ऑफ माइक्रो प्रोसेस विद क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज? भाई ये क्या चीज है, स्किप कर देते हैं इसको। किसी को पता है? मेरे को नहीं पता, स्किप करता है इसको ना, आगे बढ़ता हूँ। ये अच्छा है, इसके कर लो। इजी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बी आंसर हो सकता है 30 का, बी। बी है ना सबका? एवरीवन से बी, सो आई आल्सो से बी। मूविंग अहेड। क्या नियमिका? बी, आपका भी बी है ना? क्या बात है। फर्स्ट आंसर गिवन बाय राहुल केले, नाइस। इज बी।
टाइम टेकिंग, अगर यहाँ पे ये लिखा होता है टाइम टेकिंग, देन इट विल बी द राइट स्टेटमेंट। तो ए एंड बी यहाँ पे थोड़ा सा राइट लग रहा है। ऐसे ए बी फोर भी सही है, बट ऑप्शन में बी इज मोर एक्यूरेट। आपका भी बी आ रहा है ना? सी, सबका सी क्यों आ रहा है? डिफिकल्ट इन मैनुअल डेटा प्रोसेस, यस, इट इज ऑल्सो राइट। सी, इट इज डिफिकल्ट, अगर डिफिकल्ट की जगह टाइम टेकिंग होता देन इट विल बी मोर एक्यूरेट। आई ऑल्सो एग्री विथ यू। ए इज राइट, बी इज राइट एंड डी इज ऑल्सो राइट, बट डी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लगा सकते। देखो ये भी आंसर हो सकता है। दिस मे बी द आंसर, सी भी इसका, आप सी कह रहे हो, सी ऑल्सो आंसर। बी एंड सी अपन मान लेते हैं, ठीक है, बोथ कर लेते हैं इसका, ठीक है। यू आर ऑल्सो हैप्पी, आई एम ऑल्सो हैप्पी, ठीक है, बोथ कर लेते हैं इसका, ठीक है। गोइंग अहेड। इजी क्वेश्चन है। ओके, नाइस, नाइस शोविक। नाउ वी विल स्पीड अप। अब थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी। मैच द फॉलोइंग है। ये आंसर आ रहा है सबका? ओके, नाइस। अनामिका, सत्या। इसमें लक्ष्मी कुछ नहीं करना, बस मैच द फॉलोइंग करना है दोस्त। जैसे आपका है, जैसे डिजाइन। तो व्हाट हैपन इन डिजाइन? डिजाइन में क्या होता है? यू आर गोइंग टू राइट सम क्लास डायग्राम और आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट्स। आपके लिखोगे किसी का ब्लूप्रिंट बनाओगे, हाँ ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। तो मैच द फॉलोइंग है, क्यू का थ्री मैच करना है और कुछ नहीं करना है इसमें ना। ओनली मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन 35। 4 बाइट, 8 बाइट ईच। तो स्किप भी कर देते हैं ना। देखो 10 इसका, केबी का 10, एमबी का 10, जीबी का 10, इसका, इससे मेरा बन जाएगा टीबी, क्योंकि यहाँ से मैं इस पे लेके आऊंगा ना, तो 10, 10, 10, 10, इट विल टेक 40। एंड हेयर 64 है, तो 2 रेस टू कितना जाएगा पावर 64 के लिए? 2, 4, 8, 16, 6। यहाँ नीचे 8, 2 की पावर 3।
टू की पावर थ्री है तो ये कितना जाएगा, दो बार, तीन। अगर बेस नीचे है तो सिक्स माइनस थ्री, थ्री, थ्री प्लस फोर्टी, फोर्टी थ्री। सी आंसर आ रहा है इसका। आपका क्या आ रहा है? क्वेश्चन 35। ये फर्स्ट प्रोसेस आईडी ऑलवेज रिक्वायरमेंट। लक्ष्मीर को। ऑप्शन एलिमिनेशन देखो लक्ष्मी, समटाइम यू हैव टू गो विद द ऑप्शन एलिमिनेशन। ऑप्शन अगर आपका मैच कर रहा है देन ओके, अदरवाइज यू हैव टू गो विद ऑप्शन एलिमिनेशन। ओके। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। ये सॉर्टेड डेवलपमेंट में रैपिड प्रोटोटाइप एंड रैपिड, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो आपका नहीं होना चाहिए गलत। सिक्स बी। ओके। अनामिका एंड रेखा राइस। लक्ष्य, फिर आपका आंसर नहीं आ रहा। व्हाट हैपन? कौन भी आंसर नहीं दे रहा, क्या हो गया? ये अच्छा क्वेश्चन है। ये कुछ ढंग का लगा मेरे को अब। ये अच्छा क्वेश्चन, दिस इज गुड क्वेश्चन। ऑप्शन और जोड़ लेना। पांच। देखो इसका ट्रिक है, ऐसे फॉर्क दिखे, जस्ट टू पावर। कितने फॉर्क है? वन टू थ्री। टू पावर थ्री। ये आया ना सबका। पांच। कुछ कोई तो फंसा। अनामिका फंस गई जाल में, गलत आंसर दे दिया। एंड शोविक भी फंस गया था। सत्या नाइस। ओके बडी, थैंक यू। See, sometime examiner will give you some options like this, so you don't need to fall in the trap. This is question of OS. ये आंसर आ रहा है आपका भी डी है क्या? एक्सप्लेन सर। यस। नहीं, टू इंटू थ्री नहीं होगा दोस्त। सत्य आ गया। टू इंटू थ्री माइनस वन। टू इंटू थ्री माइनस वन।
Which formula you are applying, Satya? Maybe I don't know. If you can explain, it will be good. 2 into 3. 2 power 3. 2 4 8 minus 1. देखो इसमें होता क्या है? एक सेकंड. नहीं नहीं नहीं, सत्या सत्या सत्या. यू आर राइट, बट जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि कितने प्रोसेस आएंगे. सी, आपका जो आंसर है वो है फॉर द चाइल्ड प्रोसेस. अगर पूछता कि चाइल्ड प्रोसेस कितने, देन 2 रेज टू पावर n माइनस 1. बट इट इज आस्किंग फॉर द हेलो कितना है. इट मीन्स इट इज आस्किंग फॉर द टोटल प्रोसेस. फॉर द total process we need to use 2 raised to power n. Okay, so this thing I have explained in the class. So in the class of this in C we have discussed in very depth. So I request you please go with the classes. In that class I have explained this. This question I also explained, but you want explanation, I will explain also. देखो होता है क्या है कि मान लो आपके पास में दो प्रोसेस, दो रिसोर्स. एक रिसोर्स है 5, एक है 4. अब मुझे बताओ कि मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट है टू बी डेडलॉक फ्री. अब आपको इसमें ये देखना है कि रिक्वायरमेंट कितनी है. अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, -1. देखो, अगर मेरे पास में यहाँ पे 10 प्रोसेस है, 10 रिसोर्सेस है, तो ये क्या कभी डेडलॉक में आएगा? नहीं आएगा. Let's suppose I'm having 9 resources and it also need 9 resources. Will this system come in deadlock? No, this system will never come in deadlock. Let's suppose I'm having let's suppose I'm having two resources. So will this system come in a deadlock? Yes. Then explain how this will come in deadlock. Let's suppose I'm having three resources. Will this come in the deadlock? Yes. How? Let's suppose a process P take two resources from R. इसने कितना 2 ले लिया. And a process 2 take one resource from R. R is having total 3 process. So 2 is being taken, 1 has been taken, and P need 5 total, 5 to complete, and P2 need 4 process to complete. तो ये इसका वेट करता रहेगा टू बी कि भाई तू रिलीज कर तो मैं ले लूं, तू रिलीज कर. अगर रिलीज भी कर दें सो दे आर नॉट गोइंग टू गिव अलाउ. ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट. सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट इन डिटेल. अब ट्रिक मतलब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो जितने भी प्रोसेस रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट माइनस वन, उससे क्या होगा, मिनिमम नंबर मिल जाएगा देन +1. तो यहाँ पे देखो 5 कॉमा 4, इट मीन्स आई नीड 4 3, इट मीन्स 7. अगर 7 आएंगे तो इट विल बी इन द डेडलॉक. जैसे कि P ने ले लिए 4 और P2 ने ले लिए 3. के बाद 4 है, इसके पास 3 है, एंड इट नीड 5 टू कंप्लीट एंड इट नीड 4 टू कंप्लीट, एंड आई एम हैविंग ओनली 7. इसके पास 4 रिसोर्सेज के बाद 3 रिसोर्स, तो दिस सिस्टम इन द डेडलॉक. अब जैसे मेरे पास 8 रिसोर्स हो जाएंगे, 1 एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो आई विल अलोकेट 1 टू दिस सो दैट इट कैन कंप्लीट. जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा सो ऑटोमेटिकली इट विल रिलीज द रिसोर्स. तो ये 4 जैसे रिलीज हो जाएगा सो इट विल एडेड ओवर हियर एंड दिस विल आल्सो कंप्लीट. Okay, it is clear to you or you want one more explanation? Okay, with parent also we got the okay. Okay, Satya. Ashish, you want explanation or it is clear to you? Ashish, see if you need explanation, I will explain again. हिंदी में. Okay, I guess it is clear to you. तो जितना इसको रिसोर्स चाहिए उसमें -1. अब +1 क्यों ऐड किया? टू बी
डेडलॉक फ्री के लिए बस एक रिसोर्स और एक मिल चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई गेस ये आपसे हो जाएगा सॉल्व, यू आर एबल टू इजिली सॉल्व, सो आई एम स्किपिंग दिस क्वेश्चन ना। क्वेश्चन 40 ये अच्छा है। विल प्रिंट द हेलो वर्ल्ड ये प्रिंट कर दो। ए। ओके। क्वेश्चन 41 बीबी का क्वेश्चन है। trivial function dependency it is asking। तो व्हाट इज द ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी, इट मीन जो ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है, द थिंग विच इज ऑलरेडी इन द लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं बोलूं ए और बी को फाइंड करें, दिस इज ट्रिवियल। ए एंड बी आर फाइंडिंग ए बी सी आर फाइंडिंग सी, दिस इज ट्रिवियल। So if look at the option here, X and Z is finding Z, but W is not here. X and V, W no. X Y है, W नहीं है। D is the answer. So this concept I have explained in the classes. So I request please watch those videos. उस videos को अच्छे देखो, उसमें in depth अच्छे से बता रखा है, ठीक है, how it is happening। 41D। Okay my friend, Shovik, nice। Next question, network security or we can say cyber security। नाम तो कितना सुनने में अच्छा लग रहा है। ये पहला वायरस था जो ईमेल में आया था। बी 42 का बी इसका आंसर है। देखो ये चीजें अगर आता है तो ठीक है, वरना नहीं आता। मेरे को भी नहीं आता ये सिर्फ, दोस्त मेरे को भी नहीं आता, मैंने भी ये कुछ महीने पहले, फ्यू मंथ्स बैक आई हैव रेड दिस, दैट्स व्हाई ये आता है तो ठीक, वरना वो वाला क्वेश्चन। पेज फॉल्ट आता कब है आपके सिस्टम में? इजी क्वेश्चन। सी, व्हेन सीपीयू ओवरहीट्स। ठीक है क्या? कोई तो गलती करेगा। बी ओके, बी इज द राइट आंसर। What is the purpose of Bayes' term in the linear regression model? Bayes' term in linear regression model, फिटिंग रिलेटेड रहता है, ओवर फिटिंग।
बेस लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ये देखना पड़ेगा, भूल गया, मैं फॉरगॉट सो आई विल स्किप। याद था, थोड़ा थोड़ा याद था, बट अभी याद नहीं आ रहा, सो आई विल स्किप। Which algorithm used for finding frequent data set in transactional database? देखो, सपोर्ट वेक्टर मशीन तो नहीं लग रहा। डिसीजन ट्री में भी हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंट नहीं लग रहा। बी या सी के अंदर आंसर हो सकता है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंट आइटम्स इन डेटा, बी या सी में आंसर आ रहा हो सकता है। सी हो सकता है, बी सी ज्यादा लग रहा है। इसका देख लेना अपना, बी या सी में इसका आंसर हो सकता है। क्लस्टरिंग में यहाँ पे हम डेटा सेट हम बनाते हैं ऑन द ग्रुपिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑन ऑब्जर्वेशन। मतलब ज्यादा ये सी लग रहा है, बट यू नीड टू चेक, इसको थोड़ा देख लेना, सी लग रहा है। ये देखो, इजी इजी क्वेश्चन है, 46 इजी क्वेश्चन। फोर्टी सिक्स इजी क्वेश्चन, बी बी बी, क्या बात है, सबका बी है, वेरी गुड। 47। नेटवर्किंग का क्वेश्चन है, ओएसआई लेयर से क्वेश्चन है आपका। बेस लेयर का क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन रह गया क्या? 47। फ्रॉड रेट, फ्रॉड रेट एकदम, ये भाई कितने आपके सिग्नल दे रहा पर सेकंड? 48। मैनचेस्टर, 48 का सी, मैनचेस्टर। हाँ, जो 47 है। फ्रॉड रेट क्या है भैया, आपके कितने सिग्नल्स आ रहे हैं? 49। मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, ये इजी है। सी, यस, सी इज द राइट। तो बोथ CSMA CD and CSMA CA, collision detection and collision avoidance, both are used for multiple access protocol। चेक, ये इजी क्वेश्चन है। 50। देखो, जो गेट है आपके वो भी आपको देखने पड़ेंगे, हल्का हल्का देखना, एडिशन गेट क्या करता है, एक्सॉर गेट क्या होता है, आपका और गेट होता है क्या है, नॉट गेट क्या है, तो गेट देख लेना। ए, यस, checksum ऑफ दिस ए, क्योंकि दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगी एंड इट विल बी द डिस्कार्डेड। So we have reached till 50
क्वेश्चन 15 टू वी कैर एक्सप्लेन ओके 50th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं क्या कह रहा है। वन 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 एंड वन 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 वन। नाउ वन वन है तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ये आ जाएगा वन प्लस वन वन, वन कैरी वन प्लस फोर बिट, तो ये उठ के यहाँ आ जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। तो वी विल हैव वन। ये जो आगे था इसको ऐड कर देंगे, वन वन। बी आंसर हो जाएगा ना, बी आंसर है ना। यस। श्रद्धा, ए, ए क्यों आएगा, इसका बी होगा ना। गलती किया है क्या मैंने। डिसकार्ड द कैरी, जो आगे था उसको हमने वी हैव डिसकार्डेड। तो वन 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 जीरो, तो ये आया अपने पास। जो हमने ऐड एक्स्ट्रा था उसको ऐड कर दिया था, फिर अपने पास में वन 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 ही तो आ रहा है इसमें। वन 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 था, इसको ऐड किया। गलती कर रहा हूँ क्या मैं। वन कॉम्प्लीमेंट कुछ गलती है कि चेक सब XOR is used, then A will be okay. Then take one's complement. Okay, okay, okay. One's complement रह गया क्या। तो वंस कॉम्प्लीमेंट लोगे तो जीरो हो जाएगा, तो ये इसका ए आंसर होगा फिर। यहाँ पे ए आंसर होगा आपका फिर। Because we have forgot to take the ones complement. So in the result we need to add the ones complement. तो जो अपना रिजल्ट आया था ना, उसमें we need to do the ones complement. Because of one's complement, it will become zero. Okay, the answer given by
अनामिका, अनामिका, वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग है क्या? नेट का तो पता लग गया, क्या इसका तो क्यू है। स्टेटफुल जो आपकी है, तो वो क्या करेगा आपका, टीसीपी जो है कनेक्शन उसमें कर लेगा। तो तीसरे का क्यू, चौथे का आर, ये है तीसरे का क्यू। हाँ, तो ये आंसर आ रहा है, आपका भी ये आ रहा है ना? ए ए ए, वेरी गुड, नाइस। सो you and I are on the both same track. Which HTML tag to create a hyperlink? ये इजी है, सबसे इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर रॉन्ग नहीं होना चाहिए। HTML है। तो इफ यू हैव स्टडीड द HTML एट एनीवेयर, अगर आपने HTML में कभी गलती से भी 1 आवर दिए होंगे, 1 आवर दिया होगा, गलती से भी 1 आवर दिया होगा, इफ यू आर गिवन 1 आवर टू HTML और 2 आवर, देन दिस एबल टू आंसर 52। वेरी गुड किरण। Which is a property control the text size? टेक्स्ट की साइज से कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है? बी नहीं होगा, सी होगा। टेक्स्ट साइज का कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, फोंट साइज प्रॉपर्टी होती है। 53 का सी। इसको ही तो बी लगाएगा। किसने बी लगाया? कोई तो फंसा जाल में। ओके, शोभिक शोभिक भाई फंस गए। देखो, आई विल शो यू। जैसे कि लेट्स ओपन अ वेबसाइट और फेसबुक। अब जैसे ये लिखा है फॉरगॉट पैटर्न, ठीक है? So let's increase the font size of the forward pattern. Font size. Let's suppose make 10 pixel. अब देखो, font size increase हो रहा है ना आपका? So when we increase the value, font size is also increasing. So the property is font size. ठीक है? So C is the right answer. मैंने बहुत जोन से पढ़ाते हैं सर। ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू। Shovik, now it is clear to you. Shovik, if it is clear, then we will move ahead. ये एग्जाम में मत करना गलती ना। ओके, क्वेश्चन 54। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप? देखो, जावास्क्रिप्ट में आपकी कौन कौन सी चीजें होती है वो देख लो आप। 54। सी, सी, टी, पी, इसमें मिक्स आ रहे हैं, देखो इसका आंसर होगा सी। आपको मैं दिखाता हूँ जावास्क्रिप्ट में होता है क्या ना।
देखो मैंने लिखा लेट ए इज इक्वल टू, आई होप इट इज क्लियर, लेट ए इज इक्वल टू 5। मैं लिखूंगा टाइप ऑफ ए। इसने लिख दिया कि यह जो आपका ए वेरिएबल है ना सर, वो क्या है, वो एक नंबर है। मैंने बोला कि यार इसको लिख देता हूँ हेलो। अब मैंने बोला बताओ, अब इसने बोला कि जो ए वेरिएबल है वो क्या स्ट्रिंग है, ठीक है। मैंने बोला टाइप ऑफ बताओ तो फॉक्स। अब फॉक्स कोई वेरिएबल ही नहीं है सर, यू हैवंट डिक्लेयर एनी वेरिएबल, तो उसने बता क्या दिया अनडिफाइंड, उसने कह दिया अनडिफाइंड। ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया B1। अब इसमें क्या है, इसको आइडेंटिफाई देना पड़ेगा, सो वी हैव टू गिव सम वैल्यू ओवर टू एनी ऑब्जेक्ट। इसको कर लो न्यू ऑब्जेक्ट करके, इसको एम्प्टी रखना है तो एम्प्टी रख लो, और इसमें कुछ वैल्यूज आपको देनी है तो यू कैन गिव द वैल्यूज ऑल्सो। ये ले नहीं रहा है इसमें। ठीक है, मैंने कहा टाइप ऑफ B1। इसने कह दिया कि सर B1 क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा ए के अंदर मैं रखता हूँ जैसे 4.445। अब मैंने बताया कि आप ए बताओ ए क्या है। ए इसने कहा नंबर है, तो इसने अभी तक फ्लोट नहीं बताया। आपको लग रहा था 4.45 को क्या फ्लोट बताएगा, बट इट्स इसने बोला क्या नंबर है। सो वी आर हैविंग सम डेटा टाइप, so for this you have to study. Okay, so C is not okay, so I guess it is clear to you। आपने देखा कि इन द आंसर बुलियन भी आंसर आ सकता है। बुलियन कुछ नहीं होता, बुलियन जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। बुलियन फ्लैग, फ्लैग वन कर लो इज इक्वल टू फॉल्स कर लो। इतना रहने ही दो ना, आप सीधा कर लो लेट फ्लैग वन इज इक्वल टू फॉल्स, टाइप ऑफ फ्लैग वन। इसने दे दिया बुलियन। तो आपके जितने भी डेटा टाइप है इट इज शोइंग यू द डेटा टाइप। तो वी हैव रिसीव ऑल डेटा टाइप, बट आपका जो फ्लोट है वो नहीं आया, एक बार भी फ्लोट नहीं आया। तो सी इज द राइट आंसर। ओके, सी फॉर दिस यू हैव टू स्टडी। देखो आप इफ यू स्टडी जावास्क्रिप्ट, अगर आप 6 to 8 hours देखोगे ना फॉर द जावास्क्रिप्ट, basic fundamental will be cleared of the JavaScript. Just you need to give 6 to 8 hours basic. But to study JavaScript in depth, it will require a week. एक वीक तो आपको मिनिमम देना पड़ेगा, 1 week minimum you need to give to the JavaScript just to know little bit in more advance. Otherwise some take 1 month 1 year। मतलब मैं तो कहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट इतना ज्यादा वास्ट, अगर आप 1 साल से 2 साल से 3 साल से जावास्क्रिप्ट काम कर रहे हो तो nobody can say कि मुझे 100% जावास्क्रिप्ट आता है। जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ है वेरी वेरी वास्ट, उसमें बहुत सारे फ्रेमवर्क्स भी आपके हैं। frameworks like your, we can say we are having a framework of Angular। तो आई वर्क ऑन एंगुलर 1 पे काम किया, एंगुलर 2, एंगुलर 3, मतलब ये नहीं आया था। फिर आपके जो एंगुलर्स के जो है अलग अलग वर्जन 6 7 8 ये आ गए थे। नाउ वी आर हैविंग द लाइब्रेरी आल्सो। आपने कभी रिएक्ट जेएस का नाम सुना होगा, रिएक्ट जेएस है, व्यू जेएस है, तो ये सारे के सारे क्या है, सारी लाइब्रेरी है। बट एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन द जावास्क्रिप्ट। ओके, क्वेश्चन 55, इजी क्वेश्चन 55।
55 C. Okay, yes, C. C is the right answer. Moving ahead. 56. अच्छा क्वेश्चन है 56 ए. यस. 57. इस 7 में थोड़ा सा मिक्स आंसर आ रहा है आपका ना. तो बी इसका आंसर होगा. 57 का बी. 58. इजी क्वेश्चन है. 58 का क्या आंसर है? एट इजी है. डी. यस. तो 59. रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है, सो ए विल बी द आंसर. ओके. रॉन्ग पूछ रहा है दोस्त, वो रॉन्ग 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 गलत पूछ रहा है वो. क्वेश्चन में रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है. देखो प्राइवेट क्लाउड में क्या होगा. मान लो कि फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्राइवेट क्लाउड. So let's suppose you are a CEO of some XYZ company. आपने बोला लेट्स मेक अ प्राइवेट क्लाउड इन अवर बिल्डिंग. तो ये आपकी कोई बिल्डिंग है. तो यू हैव सम सर्वर्स. हो सकता है कि आपके पास में 5 सर्वर हो. एंड मे बी जो आपके पास में स्पेस हो सकता है कि 5 TB स्पेस हो. आपके पास रैम की बात करो, लेट्स सपोज 50 GB रैम है. तो ये आपके आपका प्राइवेट क्लाउड है. अब यहाँ पे कुछ भी एडिशन नहीं होगा. तो दिस इज रिजिड. अब मान लो कि बहुत ज्यादा डिमांड है, सो यू नीड टू बाय अ न्यू सर्वर फ्रॉम द मार्केट एंड यू हैव टू इंस्टॉल हियर. so this is not like cloud में क्या होगा, you can increase or decrease at any point of time, but here no, you have to play with this game only. Okay. 59. Let's move to the last question of the video. Okay. And which of the following is most defined restrictive cloud service model? मतलब रीडिफाइंड, जैसा क्लाइंट बोले वैसा कर दो. क्लाइंट ने बोला ये चाहिए ये दे दो. जो है क्लाइंट ने बोला मुझे ये चाहिए ये दे दो. वॉट एवर द क्लाइंट से, यू आर जस्ट मेकिंग इट. एंड sometime there is a restrictions also. तो ऐसा भी नहीं है कि you can give everything, some restrictions is also there. Restrictive cloud also there. So in my opinion,
तो वी कैन गो फॉर द एप्लीकेशन स्टेप। तो जैसे आपका पैस इसमें हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट आंसर आ रहा है, ठीक है, ए थोड़ा सा मेरे को लग रहा है। बट ये जो क्वेश्चन है ना, दिस क्वेश्चन वाज लिटिल, इट नीड मोर लाइंस। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, एंड वी कैन से दिस इज द क्वेश्चन, इट इफ हैज मोर लाइन, सो मे बी आपका आंसर सही हो, मे बी ये आपका आंसर सही हो, बट इफ यू हैव मोर लाइंस देन वी कैन गिव द राइट आंसर। ठीक है, एग्जाम में कुछ आपको एक्स्ट्रा लाइन देगा। ठीक है, तो आई गेस वी हैव डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो जितने भी अब तक आपने देखा, सो अकॉर्डिंग टू यू हाउ वाज द सेशन? आपको अच्छा लगा? तो हैव यू लर्न समथिंग न्यू इन दिस 60 वीडियो? So please let me know your feedback. And here we are going to conclude our session also. ठीक है, तो अब 60 क्वेश्चंस थे अपन ने देखे थे, सो वी हैव लर्न सम न्यू कंसेप्ट। देखो 60 क्वेश्चन से तो एक आधा कंसेप्ट तो आप देखोगे, देखो इससे थोड़ा सा ऊपर आएगा लेवल, लिटिल बिट मोर लेवल यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट। सी वी आर हैविंग द 60 क्वेश्चन। देखो एग्जाम में क्या होता है, 60 क्वेश्चंस होता है, तो एग्जामिनर को क्या करना है यार, 20 क्वेश्चन तो वो इजी दे दिए मान लो उसने। अब यहाँ पे आपका रहता है, यहाँ पे उसको ये पता है कि मीडियम कितने देने हैं। हो सकता है कि 30 मीडियम दे दी और आपने इसने 10, इसने आपने हार्ड लेवल क्वेश्चन दे दी। अब हो सकता है कि ये मीडियम में इंक्रीज कर दे, हार्ड में इंक्रीज कर दे, इजी में लोग करते। अब सी लेवल ऑफ द एग्जाम इन माय ओपिनियन इट विल बी द मॉडरेट लेवल। जो एग्जाम का रहेगा मॉडरेट लेवल रहेगा, इजी लेवल नहीं रहेगा। ओवरऑल ओवरऑल एग्जाम विल बी द मॉडरेट लेवल। और जो आपका आपके लिए जो गुड स्कोर है, आई विल ट्राई कि 50% तो ट्राई करना ही करना, आप इतना लेके आओ, ट्राई फॉर 50% एट लीस्ट। ओके, तो इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। ठीक है दोस्तों, इसी के लिए जय हिंद जय भारत।